यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी आईएनसी ने वर्जिन हाइपरलूप जो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा फास्ट स्पीड से जाती है उस कंपनी को मात दे दी है, उसको बीट किया है। दोस्तों 2018 में पुणे के डेप्यूटी कलेक्टर श्रीपति मोरे, उनसे मेरी बात हुई स्काईवे के बारे में और तब उन्होंने बताया कि मुंबई से पुणे 200 किलोमीटर वर्जिन हाइपरलूप बन रही है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई जाएगी। और अभी 1-1.5 साल के पहले हमने हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर कहा कि वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी अब पैसेंजर के लिए तो बनेगी ही नहीं। आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां, और क्यों नहीं बनेगी उसका भी हमने कारण बताया था। अब देखते हैं कि UST.INC ने वर्जिन हाइपरलूप को मात कैसे दे दी, कैसे बीट किया। तो मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, दोनों भी। आप देखते रहिए और आगे आगे तो देखो होता है क्या। और वर्जिन हाइपरलूप कंपनी है एलोन मस्क की, जो दुनिया में अभी सबसे अमीर व्यक्ति है और बहुत फेमस व्यक्ति है। जैसे उनकी टेस्ला कंपनी भी है और वर्जिन हाइपरलूप कंपनी भी है। वर्जिन हाइपरलूप क्यों फेल हुई मैंने आपको 1-1.5 साल के पहले बताया है इसी वीडियो चैनल पर। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज। चलिए देखिए यह है RSW का अकाउंट, RSW की वेबसाइट, और ये देखिए यह है न्यूज 27 जनवरी 2023 की यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC हैज बीटन वर्जिन हाइपरलूप। चलिए इसे पढ़ते हैं और इसका मैं आपको हिंदी में भी बताता हूं अनुवाद। देखिए यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC हैज बीटन वर्जिन हाइपरलूप। डियर इन्वेस्टर्स, वी प्रेजेंट टू योर attention another interesting article which has appeared in the well known to us publication World Construction Today। वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन टुडे नाम का जो पब्लिकेशन है उसमें ये न्यूज आई है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC हैज बीटन वर्जिन हाइपरलूप। वैक्यूम पैसेंजर ट्रेन्स दैट एक्सेलरेट above 1000 km per hour। Virgin Hyperloop assured that it will put this line into practice, but not so long ago the company officially announced that it abandoned the idea of passenger transportation। Financial Times reported that Virgin Hyperloop has switched entirely to haulage। It's interesting that another developer of alternative transport has just implemented the passenger segment and announced the beginning of work on commercial projects। We are talking about Units की string technologies INC, expectation and reality। Virgin Hyperloop announced that it would build passenger capsules that can travel in very low pressure tubes at speeds of over 1000 km per hour for several years। Many media have raved about the idea, discussing the possible timing and cost of its implementation। However, there were also those who doubted the sustainability of this project। Publication of the first version of Hyperloop concept sparked many discussions among scientists and engineers। Some thought that project would not be viable even it managed to get regulatory approval। Others argued that the system is very expensive, it would cost billions of dollars which not every investor would be ready to allocate। Some others believed that the energy consumption calculations would be much higher than the developer had specified। Safety for passengers was also questioned because of the risk of depressurization। If the traveling capsule loses its airtightness, all passengers would die instantly। Only successful implementation of the project could bring the critics down। The company intended to launch the first commercial lines by 2020 and then postponed their introduction until 2021। However, even these plans were not destined to come true। Virgin Hyperloop decided to refocus from passenger transportation to haulage।
while cutting almost half of its employees, 111 people. The management explained this decision by global problems in the supply chain and all the changes due to COVID-19. Or maybe it's the fact that haulage is also the path of least resistance. Of course, the safety requirements for these segments are lower because the carrier does not have to be responsible for passenger safety. Unitsky String Technologies INC had the better of Virgin Hyperloop. By the way, the international company Unitsky String Technologies INC, UST INC, which is also developing alternatives transport, received a certificate of conformity to safety requirements from the international organization TÜV-SW last year, and shortly thereafter it announced the start of work on commercial projects. As you can see, the COVID-19 did not become an obstacle to this, although it must have seriously complicated the company's activities in the difficult conditions caused by the pandemic. Unitsky String Technologies INC didn't abandon its plans. What does UST INC offer in passengers transportation? The company develops, manufactures and tests overpass transportation and infrastructure complexes controlled by artificial intelligence steel-wheeled electric cars, U-Pods. Travel along a string rail overpass above the ground. Such vehicles can accelerate to 150 kilometers and carry up to 50,000 passengers per hour. The travel intervals are adapted to passengers' traffic thanks to intelligent control systems. Self-driving vehicles travel on the second level, which eliminates traffic jams, accidents, collisions with pedestrians and animals. There are no intersections, oncoming traffic lanes and crosswalks on some routes. The track structure can be deployed next to houses. Practically silent transport will not disturb their residents. By the way, the string rail overpass is universal. It can be used for handling both passenger and cargo traffic. The UST transport and infrastructure complexes can be used for a variety of applications. For example, for high speed and affordable communication between a mega city and the suburbs or an airport, as well as to connect parts of a city separated by a water barrier. However, the UST transport is especially efficient across hostile terrain. The construction of a string rail overpass in such areas will cost much less than of a railhead or highway. Based on the way Unitsky String Technologies INC is implementing the passenger segment, it seems that the company's transport and infrastructure complexes can be said to be a more viable solution than perhaps the overrated project from Virgin Hyperloop. यह है मित्रों वर्जिन हाइपरलूप ट्रेन। ये बनने वाली थी, लेकिन यहां से 1-1.5 साल पहले जो न्यूज आई, जो बताया गया कि ये बनेगी नहीं, क्योंकि ये महंगी भी बहुत है और उसके अलावा इसमें पूरी रिस्क है आदमी मरने की। कैसे? देखिए ये हिंदी में देखिए। यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी ने वर्जिन हाइपरलूप को मात दी है। प्रिय निवेशकों, हम आपके ध्यान में एक और दिलचस्प लेख प्रस्तुत करते हैं जो हमारे लिए प्रसिद्ध प्रकाशन वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन टुडे में छपा है। यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी ने वर्जिन हाइपरलूप को पीछे छोड़ दिया है। वैक्यूम यात्री ट्रेनें जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति करती है, वर्जिन हाइपरलूप ने आश्वासन दिया कि वह इस लाइन को अमल में लाएगी, लेकिन बहुत पहले नहीं। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसने यात्री परिवहन के विचार को छोड़ दिया है, मतलब अभी यात्री परिवहन उसमें नहीं होगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि वर्जिन हाइपरलूप ने अपने आप को पूरी तरह से माल के वाणिज्यिक परिवहन में बदल दिया है, मतलब हॉलेज में। यह दिलचस्प है कि वैकल्पिक परिवहन के एक अन्य विकासकर्ता ने अभी अभी यात्री खंड को क्रियान्वित किया था। यात्री खंड मतलब पैसेंजर सेगमेंट और वाणिज्यिक परियोजनाओं पर काम शुरू करने की घोषणा की।
हम बात कर रहे हैं कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की अपेक्षा और वास्तविकता। वर्जिन हाइपरलूप ने घोषणा की कि वह यात्री कैप्सूल का निर्माण करेगा जो बहुत कम दबाव वाली ट्यूबों में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से यात्रा कर सकता है। कई वर्षों से कई मीडिया ने इस विचार के बारे में चर्चा की है, इसके कार्यान्वयन के संभावित समय और लागत पर चर्चा की है। हालांकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस परियोजना की स्थिरता पर संदेह जताया। हाइपरलूप कंसेप्ट के पहले संस्करण के प्रकाशन ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच कई चर्चाओं को जन्म दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी, भले ही वह नियामक की मंजूरी प्राप्त करने में कामयाब रहे। मित्रों, सिर्फ मंजूरी प्राप्त करना, नियामक की मंजूरी प्राप्त करना और उसमें कामयाब होना, उसका मतलब हर चीज में कामयाब होना नहीं होता है, सुरक्षा प्रदान करना नहीं होता है। अन्य लोगों ने तर्क दिया कि प्रणाली बहुत महंगी है, इसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे, जिसे हर निवेशक आवंटित करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि ऊर्जा खपत की गणना डेवलपर द्वारा निर्दिष्ट की तुलना में बहुत अधिक होगी। अवसादन मतलब डीप्रेशराइजेशन, वो जो दबाव है ना, दबाव कम करने वाले जो टेक्नोलॉजी है वो के जोखिमों के कारण यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया गया। यदि यात्रा कैप्सूल अपनी वायु रुद्धता खो देता है तो सभी यात्री तुरंत मर जाएंगे। बहुत बड़ी रिस्क है मित्रों। केवल परियोजना का सफल क्रियान्वयन ही आलोचकों को कम कर सकता है। कंपनी ने 2020 तक पहली व्यावसायिक लाइनें लॉन्च करने का इरादा किया और फिर 2021 तक उनके परिचय को स्थगित कर दिया। हालांकि इन योजनाओं को भी पूरा होना तय नहीं था। वर्जिन हाइपरलूप ने अपने लगभग आधे कर्मचारियों, मतलब 111 लोग जो कर्मचारी थे, उनको उनकी छटनी करते हुए यात्री परिवहन से माल के वाणिज्यिक परिवहन, मतलब हॉलेज पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, जो कार्गो परिवहन अपन बोलते। प्रबंधन ने इस निर्णय को आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक समस्याएं और कोविड-19 के कारण सभी परिवर्तन के द्वारा समझाया। या शायद यह सच है कि ढुलाई मतलब हॉलेज भी कम से कम प्रतिरोध का रास्ता है। बेशक इस सेगमेंट के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं कम है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहक को जिम्मेदार नहीं होना पड़ता है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी के पास वर्जिन हाइपरलूप से बेहतर था। वैसे अंतरराष्ट्रीय कंपनी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी, जो वैकल्पिक परिवहन भी विकसित कर रही है, को पिछले साल अंतरराष्ट्रीय संगठन TUVSW से सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह सुरक्षा का प्रमाण पत्र है मित्रों, TUVSW। और इसके तुरंत बाद इसने व्यावहारिक परियोजनाओं पर काम शुरू करने की घोषणा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोविड-19 इसमें बाधा नहीं बना। हालांकि इसने कंपनी की गतिविधियों को गंभीर रूप से जटिल बना दिया होगा। महामारी के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी ने अपनी योजनाओं को नहीं छोड़ा। यात्री परिवहन में यूएसटी आईएनसी क्या पेशकश करता है? कंपनी ओवरपास, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का विकास, निर्माण और परीक्षण करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित स्टील पहिए वाली इलेक्ट्रिक कार यू-पॉड्स जमीन के ऊपर एक स्ट्रिंग रेल ओवरपास के साथ चलती है। ऐसे वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं और प्रति घंटे 50,000 यात्रियों को ले जा सकते हैं। बुद्धिमान नियंत्रण प्रणाली के लिए यात्रा अंतराल को यात्री यातायात के लिए अनुकूलित किया जाता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से सेल्फ ड्राइविंग वाहन दूसरे स्तर पर यात्रा करते हैं, जो ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं, पैदल चलने वाले और जानवरों के साथ टकराव को समाप्त करता है। ऐसे मार्गों पर कोई चौराहा, आने जाने वाली ट्रैफिक लेन और क्रॉसवॉक नहीं है। ट्रैक संरचना को घरों के बगल में तैनात किया जा सकता है। व्यावहारिक रूप से मूक मतलब साइलेंट परिवहन उनके निवासियों को परेशान नहीं करेगा। आवाज नहीं करेंगी मित्रों ट्रेन। वैसे स्ट्रिंग रेल ओवरपास सार्वभौमिक है। इसका उपयोग यात्री और कार्गो यातायात दोनों को संभालने के लिए किया जा सकता है। यूएसटी ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेगा सिटी और उपनगरों या हवाई अड्डे के बीच उच्च गति और किफायती संचार के साथ साथ पानी की बाधा से
अलग शहर के हिस्सों को जोड़ने के लिए। हालांकि यूएसटी परिवहन विशेष रूप से प्रतिकूल इलाकों में कुशल है। ऐसे क्षेत्र में एक स्ट्रिंग रेल ओवरपास के निर्माण में रेल मार्ग या राजमार्ग की तुलना में बहुत कम खर्च आएगा। जिस तरह से यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी यात्री खंड पैसेंजर सेगमेंट को लागू कर रहा है, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि कंपनी के परिवहन और बुनियादी ढांचे के परिसरों को वर्जिन हाइपरलूप की ओवररेटेड परियोजनाओं की तुलना में अधिक व्यवहार्य समाधान कहा जा सकता है। क्या मित्रों समझ गए आप क्या है ये? वर्जिन हाइपरलूप जो दुनिया में सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन बनने वाली थी पैसेंजर के लिए, वो अभी नहीं बनेगी। वैसे भी ये न्यूज मैंने 1 से 1.5 साल पहले दी है अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि वो क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भी कई लोग वही बताते थे कि ये बनेगी, वर्जिन हाइपरलूप बनेगी बनेगी बनेगी, और अभी ये पूरा यहाँ क्लियर दिख रहा है। आप आपके खुद के RSW के अकाउंट में देख सकते हैं, और ये जहां पब्लिश हुआ है वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन टुडे, उसमें भी ये देख सकते हैं। अभी भी अगर आपको इसका महत्व लगता है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का, और अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं, उसके कोनर बनना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, उसके डिविडेंड को पाने के लिए आप सक्षम बनना चाहते हैं, तो अभी भी उसके लिए अच्छा समय है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेयर न्यू ईयर पैकेज की। 31 जनवरी 2023 तक शेयर न्यू ईयर का पैकेज यानी शेयर न्यू ईयर की ऑफर बढ़ाई गई है, जिसमें $1 को 80 शेयर्स है, सबसे ज्यादा गुना शेयर्स है। अभी भी आप अगर चाहते हो कि शेयर न्यू ईयर के ऑफर का लाभ लेना, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। देखिए ये शेयर न्यू ईयर 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें $1 को 80 शेयर्स है। इसमें $250, $500, $1000 के शेयर पैकेजेस हैं। $250 में 20,000 शेयर्स, $500 में 40,000 शेयर्स, और $1000 में 80,000 शेयर्स है। सिंगल पैकेज भी खरीद सकते हैं और मल्टीपल पैकेजेस भी खरीद सकते हैं, जितने चाहे उतने, क्योंकि नॉर्मली ये 14.3 नंबर के स्टेज पर है। 15 स्टेजेस इसके कंप्लीट हो गए, 15 डेवलपमेंट स्टेज की इसका मिलेगा हमें डिविडेंड हमेशा के लिए, 100 साल की गारंटी। और ओपन मार्केट में इस शेयर की शुरुआत होगी $1 का एक शेयर से। अभी शेयर न्यू ईयर के ऑफर में मिलते हैं $1 को 80 शेयर्स, मतलब ओपन मार्केट में 80 गुना फायदा अपने आप ही होगा। वहां से शुरुआत होगी और 15 स्टेजेस कंप्लीट होने पर हमारा डिविडेंड चालू हो जाएगा। देखिए कि वर्जिन हाइपरलूप में 20 करोड़ रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं था प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति सिर्फ 20 करोड़, कम से कम 20 करोड़ रुपया ही इन्वेस्ट कर सकता है, उसके नीचे नहीं। तो वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली होंगी सिर्फ चंद लोगों को, लेकिन वो हो गया फेल। पैसेंजर तो फेल ही हो गया, वो पैसेंजर ट्रेन वर्जिन हाइपरलूप की। लेकिन यूएसटी में दुनिया के सभी लोगों को, सभी आम जनता को भी इसमें अपॉर्चुनिटी है उसमें निवेश करने की, और सबसे बड़े दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ का कोनर बनने की अपॉर्चुनिटी है। $400 अरब का आईपीओ, और अभी तक 27 सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं 27 मॉडल के यूएसटी में। तो देखो ये कैसे शुरू होता है, वन बाय वन ऐसा करते करते पूरे दुनिया में यह होगा, क्योंकि पूरे दुनिया को इसकी जरूरत है। दुनिया की सबसे खास टेक्नोलॉजी, दुनिया के प्रॉब्लम्स खत्म करने वाली, उसके कोनर बनना प्राउड फीलिंग की बात है मित्रों। तो आशा करता हूं मित्रों कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूएसटी बनाओ।